Hi everyone, welcome to Nebe Pathshala. Hope you're doing well. So this is the third video in the Basic to Advanced LRDI series for CAT, XAT, SNAP, and NMAT. Right, so we have already done two videos, two sessions, and we have actually started with the linear arrangement. So अभी हम linear arrangement का basic discuss कर रहे हैं, right, through different kinds of problems, through different categories of problems. Right, so today also I have one very good set for you, right? This is a floor-based arrangement, right? It is not too difficult, I would say, but yes, it gives you a good idea how the flooring arrangement is actually done, right? So let's kick off with this particular session. And before actually I start this, so we have the Pinnacle batch starting from the 6th of February. So if you are looking for a CAT 25 comprehensive program comprising of everything in detail, so this batch is for you, right? And if you want to inquire for this particular batch, so the numbers are there on the screen. Also, the links to join for this particular batch are there in the description itself, right? You can definitely go ahead and check out this particular batch. Right, with that clarity in mind, let's kick off with the first set and set for today, right? So we have a floor-based arrangement. And as always, I would like really encourage you. So first pause this video right here itself, try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. राइट पहले तुम सेट को खुद से ट्राई कर लो मैक्सिमम तुम्हारा जो एक बेनिफिट है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो तभी आएगा ठीक है एंड उसके बाद इफ यू डोंट गेट द सोल्यूशन गो अहेड एंड go ahead and watch the solution. So chalo फिर let's start reading this particular set. Let's try to understand this. क्या दिया हुआ है हमारे पास 12 people A B C D E F G H I J K and L. They live in a building with 5 floors. So there is basically a building with 5 floors. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 floors. Each floor has 3 flats, flat 1, flat 2 and flat 3. So specifically हर floor पे क्या है 3 flats है flat 1, flat 2, flat 3 in the same order from left to right. So basically what I can actually visualize from here and you should be able to visualize कि हमारे पास क्या है like 5 floors है. Let's say ये first floor है तो first floor पे 3 flats होंगे flat 1, flat 2, flat 3 from left to right in that order. Similarly second वाले पे भी वही होना चाहिए फिर F1, F2 and F3 flat 1, flat 2 and flat 3. एंड उसको और क्लियर करने के लिए हमारा नेक्स्ट लाइन भी दिया हुआ है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फ्लोर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज फ्लोर 5. तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर नंबर्स. सो 1 2 3 4 5 है राइट. एंड इसका फर्स्ट पॉइंट तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि F1 F2 F3 इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एवरी फ्लोर. Each flat is built in such a way that flat 1 of floor 2, तो लेट्स से सेकंड वाले फ्लोर का flat 1 is just above flat 1 of floor 1 and so on. तो यही है बेसिक मीनिंग है बस उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी दी है सो दैट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी फॉर दैट मैटर. ठीक है ऐसा तो नहीं है कि ऐसा फ्लोर है F1 F2 F3 और इस वाले में F1 राइट हैंड साइड पे. तो ऐसा कुछ नहीं है स्टैंडर्ड है. तो सेकंड वाले फ्लोर पे भी जो फ्लोर 1 है मतलब सॉरी फ्लैट 1 है सेकंड फ्लोर का वो हमारा फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 1 के जस्ट ऊपर है. सो बेसिकली F1 F2 F3 हमेशा हर फ्लोर पे इसी ऑर्डर में रहेंगे F1 F2 F3 and so on, right? This will be valid for the remaining 2 floors as well, 4 and 5th floor as well, right? Initial diagram अपने को clear हो गया. So we have a what we need to make is a what 5x3 का मैट्रिक्स 5x3 का बॉक्स बना लेंगे एक ग्रिड बना लेंगे और उस ग्रिड में हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे इन 12 लोगों के नाम. बट उससे तुम्हें तुरंत ये भी समझ में आएगा कि ऑब्वियसली यार लाइक 5x3 बना रहे हैं तो 15 फ्लैट्स की बात हो रही है बट वी नीड स्पेस फॉर ओनली 12 पीपल. तो कहीं ना कहीं 3 हमारे जो फ्लैट्स होने वाले हैं वो एम्प्टी होने वाले हैं और वो जब तुम आगे बढ़ोगे तो और क्लियर अपने को समझ में आ जाएगा राइट. बट चलो फिर हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो आई विल क्विकली गो अहेड एंड मेक अ ग्रिड राइट. सो वी हैव अ 5x3 ग्रिड और नेमिंग हमने कैसे करी थी उसी को रिपीट कर देते हैं वापस से. तो नीचे से स्टार्ट होगा. सो दिस इज फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, फ्लोर 5 एंड हर फ्लोर पे हमारे फ्लैट के भी नंबर है. सो यहाँ पे लिख लेते हैं. सो दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3 ऑलवेज. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया था. ठीक है बेसिक मीनिंग था. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट से. मेन जो लाइक लॉजिक है अब यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है 3 फ्लैट्स आर वेकेंट. नाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड 3 फ्लैट्स वेकेंट है एंड 5x3 में 15 फ्लैट्स है और हमें टोटल कितने लोगों को अरेंज करना है 12 लोगों को. इट मेक्स गुड अमाउंट ऑफ सेंस राइट. एवरीथिंग बैलेंसेस अप लाइक 12 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड होंगे
3 फ्लैट्स हमारे अनऑक्यूपाइड होंगे या वेकेंट होंगे, एम्प्टी होंगे, क्रॉस से डिनोट कर देंगे बाय द वे उसको, एंड टोटल मिला के हमारे पास 15 फ्लैट्स है, सो 12 प्लस 3 एड्स अप टू 15, एवरीथिंग एड्स अप, परफेक्ट। सो 3 फ्लैट्स आर वेकेंट, ठीक है, 3 क्रॉस डलेंगे यहाँ पे। The vacant flats are on odd numbered floor and a floor does not have multiple vacant flats. Now, what does this essentially mean? The vacant flats, जो भी वो फ्लैट्स हैं जिसमें हम क्रॉस डालने वाले हैं, वो वाले फ्लैट्स कहाँ पे है? ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो या तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है, या तो वो थर्ड फ्लोर पे है, या तो वो फिफ्थ फ्लोर पे है, तीन ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब फोर्थ वाले फ्लोर पे तीनों फ्लैट्स ऑक्यूपाइड होंगे, राइट? ये भी ऑक्यूपाइड होगा, ये भी ऑक्यूपाइड होगा, ये भी ऑक्यूपाइड होगा। सेकंड वाला फ्लोर इवन नंबर्ड फ्लोर, इसमें भी सब कुछ क्या होगा? ऑक्यूपाइड होगा, तीनों फ्लैट्स पे कोई नहीं रहेगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे मिला के कितने क्रॉसेस आने चाहिए, कितने वेकेंट फ्लैट्स हैं? टोटल हमारे 3 आने चाहिए। तो तीनों में मिला के 3 एम्प्टी फ्लैट्स है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट अ फ्लोर डज नॉट हैव मल्टीपल वेकेंट फ्लैट, तो किसी भी फ्लोर पे एक से ज्यादा एम्प्टी फ्लैट नहीं हो सकता। तो बट सिंपल सी बात है, फर्स्ट पे एक एम्प्टी फ्लैट होगा, थर्ड पे भी एक एम्प्टी फ्लैट होगा, और फिफ्थ पे भी एक एम्प्टी फ्लैट होगा, तभी तो हमारे टोटल 3 वेकेंट या एम्प्टी फ्लैट्स मिलेंगे। और किसी भी फ्लोर पे एक से ज्यादा एम्प्टी फ्लैट होना नहीं चाहिए, तो टोटल 3 चाहिए। सब पे मिनिमम, सॉरी, सब पे मैक्सिमम एक ही एम्प्टी आ सकता है, और एम्प्टी आना भी है। तो ऑब्वियसली फिर हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पे भी एक आएगा, थर्ड पे भी एक एम्प्टी फ्लैट आएगा, और एक फिफ्थ पे भी हमारा एक एम्प्टी फ्लैट आएगा, राइट? ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नाउ सेकंड वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीटली डील कर लिया। अब आगे बढ़ते। थर्ड, none of the vacant flats is flat number 3. Okay, now this also adds up to that second point itself. सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बोला था कि ये फिफ्थ फ्लोर पे एक एम्प्टी फ्लैट होगा, कंक्लूड कर लिया। थर्ड पे भी एक एम्प्टी फ्लैट होगा, और फर्स्ट पे भी एक एम्प्टी फ्लैट होगा। अब बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट नन ऑफ द वेकेंट फ्लैट इज फ्लैट नंबर 3, तो कभी भी फ्लैट नंबर 3 में हमारा एम्प्टी फ्लैट नहीं आएगा। मतलब फ्लैट नंबर 3 में डेफिनेटली अब कंक्लूड कर सकता हूं इट विल ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड, राइट? यहां पे भी ऑक्यूपाइड होगा, ये भी ऑक्यूपाइड होगा, ये भी हमारा ऑक्यूपाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फर्स्ट फ्लोर पे इन दोनों में से किसी एक जगह क्रॉस आएगा और दूसरी जगह टिक आएगा, थर्ड फ्लोर पे भी इन दोनों में से किसी एक जगह क्रॉस आएगा, दूसरी जगह टिक आएगा, एंड फिफ्थ फ्लोर पे भी इन दोनों में से किसी एक जगह क्रॉस आएगा और दूसरी जगह क्या आएगा? डेफिनेटली हमारा वो टिक आएगा, राइट? ये अपने दिमाग में अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? फिट हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए यार। इस तरीके से कुछ हमारा क्या होने वाला है? अरेंजमेंट होने वाला है, राइट? ओके, सो दिस थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल गया, पूरा आइडिया नहीं मिला है, बट यस कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि 3 क्रॉसेस आने वाले हैं, इन दोनों में एक क्रॉस, इन दोनों में कहीं एक क्रॉस, और इन दोनों में कहीं एक क्रॉस, बाकी सब कुछ सब टिक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स हमारा इंफॉर्मेशन लोगों के अराउंड है, कौन कहां पे रह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? बी लिव्स जस्ट अबव अ वेकेंट फ्लैट बट नॉट ऑन फ्लोर 2। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस पॉइंट। लेट्स फर्स्ट आल्सो रीड दिस अगेन। बी लिव्स जस्ट अबव अ वेकेंट फ्लैट। तो बी की पोजीशन कुछ ऐसी है कि बी जस्ट एक क्रॉस के ऊपर रहता है, क्रॉस बोले तो एम्प्टी फ्लैट। तो बी लिव्स जस्ट अबव अ वेकेंट फ्लैट, बट बी डज नॉट लिव ऑन व्हाट? फ्लोर नंबर 2, सेकंड पे नहीं रहता। अब समझने की कोशिश करना, बी एक क्रॉस के ऊपर रहेगा, और क्रॉसेस मेरे को पता है कि ऑड नंबर में आ सकता है, 1 पे आ सकता है, 3 में आ सकता है, 5 में आ सकता है। अब अगर ये जो सिचुएशन है कि बी एक क्रॉस के ऊपर रहता है, ये वाला क्रॉस अगर फर्स्ट फ्लोर के किसी फ्लैट में है, तब तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज इन दैट केस बी हमारा सेकेंड फ्लोर में पहुंच जाएगा, बट इसने यही तो मना करा, बी इज नॉट लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो मतलब बी हमारा सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो वो जो क्रॉस है जिसके जस्ट ऊपर हमारा बी रहता है, वो क्रॉस हमारा फर्स्ट वाले फ्लोर पे नहीं है। क्या वो थर्ड पे हो सकता है? यस, थर्ड में अगर हमारा वो क्रॉस है, जो कि होगा कहीं ना कहीं, उसके ऊपर हमारा बी फोर्थ फ्लोर में आ सकता है। उसके ऊपर कोई मना कर नहीं रखा है, तो बी डेफिनेटली हमारा फोर्थ फ्लोर में आ सकता है। दैट इज अगेन पॉसिबल। क्या हमारा बी और कहीं आ सकता है? अगर बी को सपोज और कहीं आना है, तो उसके लिए ये क्रॉस की जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो कहां आ सकती है? अगला क्रॉस हमारा कहां आ सकता है? फिफ्थ फ्लोर पे। बट अगर फिफ्थ फ्लोर का ये वाला क्रॉस है, फिर बी के लिए पोजीशन मिलेगी नहीं ना, बिकॉज फिफ्थ फ्लोर इज द टॉप मोस्ट फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर के ऊपर तो कोई है नहीं ना, बट क्रॉस के ऊपर बी जाएगा। अभी क्रॉस अगर फिफ्थ वाले फ्लोर में है, तो बी कहां लटकेगा? ऊपर तो नहीं बैठेगा छत पे। इसका मतलब हम डेफिनेटली अब कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ये जो सिचुएशन है, बी एक जस्ट क्रॉस के ऊपर रहता है, तो बी हमारा किस फ्लोर पे रहेगा? फोर्थ फ्लोर पे रहेगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि बी हमारा किस फ्लैट में रहता है, F1 F2 या F3।
तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को कोई नाम क्लियरली पता चल जाएगा कि ये पर्सन यहाँ रहता है, उसका नाम है पहले साइड में डाल देता हूँ उसी रो में। तो मेरे को एक चीज की गारंटी है कि बी हमारा इसी फ्लोर पे रहता है, फोर्थ फ्लोर पे, इन लाइक एनी ऑफ दीज 3 फ्लैट्स। ठीक है, और बी के जस्ट नीचे क्रॉस आएगा, ये मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, तो मेरे को क्लियर रहेगा कि बी जस्ट नीचे, मतलब फोर्थ फ्लोर में बी रहता है, तो बी के जस्ट नीचे हमारा एक क्रॉस आने वाला है, तो डेफिनेटली या तो वो क्रॉस यहाँ है तो बी यहाँ चला जाएगा, या फिर यहाँ क्रॉस होगा जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बी इन दैट केस यहाँ चला जाएगा। आई विल हैव 2 पॉसिबिलिटीज राइट नाउ। ठीक है, so with that fourth point is also taken care of. Okay, next, A and C live just above the floor on which B lives. Now this is good because कहीं ना कहीं मेरे प्लेसमेंट थोड़ा सा लाइक डिसाइड होता जा रहा है एटलीस्ट कौन लोग कहां पे रह रहे हैं। A and C live just above the floor on which B lives. Now that we have concluded very clearly कि B हमारा फोर्थ फ्लोर पे रहता है, तो I can be very sure कि A and C will live just above the floor on which B lives. तो मतलब बी अगर हमारा फोर्थ पे रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ए और सी दोनों ही कहां पे रह रहे होंगे, फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे होंगे। एंड बाय द वे यू शुड आल्सो नोटिस कि फिफ्थ फ्लोर पे हमारा कोई एक क्रॉस तो आएगा ना, और बाकी 2 लोग रह रहे होंगे, तो वो 2 लोग मेरे को डेफिनेटली मिल चुके हैं। फोर्थ फ्लोर पे मेरे को 3 लोग चाहिए, तो मेरे को अभी एक ही इंसान मिला हुआ है। थर्ड फ्लोर पे अगेन एक क्रॉस चाहिए, 2 लोग के नाम आने वाले जो रहेंगे। सेकंड फ्लोर पे भी मैं टिक मार रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे को क्लैरिटी रहेगी कहाँ पे 3 नाम चाहिए, कहाँ पे 2 नाम चाहिए। सेकंड फ्लोर पे 3 लोग चाहिए, एंड डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या चाहिए, 2 लोग चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कीप रीडिंग। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट डन। अगला पॉइंट, 6 पॉइंट, D lives in flat 1 of floor 1. Now this is good, unique information है, we like unique information. So D lives in flat 1 floor 1, floor 1 flat 1, so यहाँ पे कौन आ गया हमारा, D आ गया। While K lives on flat 2 floor 2, flat 2 floor 2, so this has to be what, K. इन दोनों में से एक नाम तुम्हें D मिल गया, और इन 3 नाम में से एक नाम तुम्हें K मिल गया। ठीक है, the picture is getting clearer. Okay, so 6 point is also done. Seventh point, A lives just above G. Now, A lives just above G. इसका क्या मतलब है? A तो मेरे को पता है ना कि फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, and it is saying A lives just above G. तो G जहां पे रहता होगा जस्ट उससे ऊपर हमारा A रहता होगा। तो इससे पहले तो एक छोटा कंक्लूजन ये है कि हमारा जो G है डेफिनेटली फिर A के जस्ट नीचे रहता है, दैट मींस फोर्थ फ्लोर पे रहता है, तो फोर्थ फ्लोर पे एक और पर्सन का नाम मिल गया, दैट इज G। एंड ए एंड जी में रिलेशन ये है कि ए हमारा जी के जस्ट ऊपर रहेगा, एक तरीके से या तो यहां होंगे, या तो यहां होंगे, या फिर यहां पे होंगे। अभी मेरे को नहीं पता कि कहां पे होंगे, बट यस एक साथ ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, सो 7th पॉइंट इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8th पॉइंट, देर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लैट बिटवीन अ वेकेंट फ्लैट एंड एल ऑन द सेम फ्लोर। नाउ इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके का पॉइंट है, बट यस तोड़ते हैं इसको। सो देर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लैट बिटवीन अ वेकेंट फ्लैट एंड एल ऑन द सेम फ्लोर। नाउ व्हाट डज दिस बेसिकली मीन कि एल और एक वेकेंट फ्लैट के बीच में एक फ्लैट का गैप है, मतलब एल आएगा, कोई एक फ्लैट होगा और एक एम्प्टी लाइक वेकेंट फ्लैट है, या फिर द अदर पॉसिबिलिटी वुड बी कि वेकेंट फ्लैट है, कोई एक और फ्लैट है और एल है, यही तो पॉसिबिलिटी होगी। बट इसका तो फिर ये मतलब निकल के आ रहा है ना कि एल एक ऐसे फ्लैट पे रहता है जो जिसमें क्या है, एक एम्प्टी फ्लैट है। यही तो बात हुई, एल एक ऐसे फ्लैट में रहता है जो कि क्या है, एक एम्प्टी फ्लैट है, उस मतलब उस फ्लोर पे एम्प्टी फ्लैट आता है। नाउ एम्प्टी फ्लैट कहां पे आ सकता है, जहां पे एल भी आ सकता है, तो नोटिस करो एम्प्टी फ्लैट हमारे ऑड नंबर फ्लोर पे आ सकते थे, ऑड नंबर फ्लोर पे आ सकते थे, फिफ्थ पे नहीं हो सकता। फिफ्थ पे ये सिचुएशन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जहां पे भी एम्प्टी फ्लैट आएगा बाकी 2 ही तो और नाम लिखोगे, बट फिफ्थ फ्लैट पे ऑलरेडी 2 नाम हम फिल कर चुके हैं, दैट इज ए एन सी आने वाले हैं। अच्छा डन। थर्ड पे हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, इट कुड बी एल एंड क्रॉस। यहां क्रॉस बाय द वे हो नहीं सकता, तो अगर अगर थर्ड पे होना है और हमें ये समझ में आ रहा है कि एल और एम्प्टी के बीच में एक है, तो ये दोनों तो एक्सट्रीम्स पे होंगे ना, फर्स्ट एंड थर्ड होंगे या फिर थर्ड एंड फर्स्ट। बट हमें पता है कि अगर थर्ड में इसको आना है, और थर्ड वाला जो फ्लैट है F3 कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, यहाँ टिक पहले ही डाल दिया था हमने। तो अगर इस सिचुएशन में यहाँ अरेंज होनी है तो एल तुम यहां लिखोगे और क्रॉस तुम यहां लिख दोगे, दैट इज पॉसिबल। क्या ये फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकता है? तुम्हें समझ में आएगा फर्स्ट फ्लोर पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लोर पे ये चीज होना था, ये हमारा ऑक्यूपाइड है, तो अगर ये सिचुएशन बननी थी तो एल को डी की जगह होना चाहिए था, तभी ये सिचुएशन वैलिड हो सकती थी।
बट यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट वाले फ्लैट में डी रहता है, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब फाइनली फिर हम थर्ड फ्लोर पे एक मेजर कंक्लूजन हम डाल सकते हैं कि हमारा एल और जो एम्प्टी फ्लोर है वो फर्स्ट एंड थर्ड या थर्ड एंड फर्स्ट सिचुएशन के अराउंड जब हम सोच रहे थे, और हमें को पता है कि फ्लैट नंबर 3 कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, सो दिस विल डेफिनेटली बी ऑक्यूपाइड बाय एल। एंड फर्स्ट वाला जो हमारा फ्लैट होगा, दिस विल बी अ क्रॉस। राइट, ये समझ में आया आई होप। ठीक है, पॉज, लुक बैक 3 to 4 minutes back into this picture and ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। So 8th point done. Now, अब before I actually move on to this 9th point, जैसे ही ये पिक्चर मैंने यहाँ पे फिट करी है ना कि यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्रॉस है, तो नोटिस करो कुछ चीजें अब यहाँ से तुम रिलेट करके फिल कर पाओगे। सबसे पहली चीज कौन सी फिट होगी तुम्हारी, थोड़ा ध्यान से देखो, तो नोटिस करोगे कि थर्ड फ्लोर पे जहां पे भी क्रॉस आता, उससे जस्ट ऊपर फोर्थ फ्लोर पे मेरे को बी लिखना है, क्योंकि यही तो थी बी की कंडीशन। बी लिव्स इमीडिएटली या जस्ट अबव अ वेकेंट फ्लैट। तो बी फोर्थ फ्लोर पे है और उसको जस्ट नीचे एक वेकेंट फ्लैट आएगा, तो थर्ड फ्लोर पे एक ही तो वेकेंट फ्लैट है। राइट, इसका मतलब ये ऑक्यूपाइड भी है, यहाँ टिक भी डाल दो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो क्रॉस के जस्ट ऊपर बी रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, बी है। इट इज नाउ डन, क्लियर। तो दिस इज नाउ बी। यहाँ दो नाम अभी और है, मेरे को नहीं पता कि कौन कहाँ आएगा, क्योंकि जी यहाँ पे भी आ सकता है, जी के करस्पॉन्डिंग जी के जस्ट ऊपर ए है, तो जी के ऊपर ए यहाँ पे भी हो सकता है, जी के ऊपर ए यहाँ पे भी हो सकता है। आई हैव बोथ दीज पॉसिबिलिटीज। राइट, इट शुड बी ओके। आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट पे। नाउ 9th पॉइंट क्या बोलता है, के डज नॉट शेयर फ्लोर विद जे और एफ। के डज नॉट शेयर फ्लोर विद जे और एफ। तो के हमारा सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो इसका मतलब इस सेकंड वाले फ्लोर पे ना हमारा जे रहेगा ना हमारा एफ रहेगा, ये दो नाम नहीं आ सकते। ठीक है, नहीं आ सकते तो कहीं और आएंगे, देखेंगे कहाँ आ सकते हैं। और इसके बाद आई लिव्स ऑन अ फ्लोर ऑन विच वन फ्लैट इज वेकेंट। नाउ आई लिव्स ऑन अ फ्लोर ऑन विच वन फ्लैट इज वेकेंट, तो अब हम अगर आई की पॉसिबिलिटी देखना स्टार्ट करें कि आई कहाँ आ सकता है, तो आई वहीं पे आएगा ऑड नंबर फ्लोर पे, बिकॉज वहीं पे तो हमारे फ्लैट्स क्या है, वेकेंट हो सकते हैं। तो आई हमारा जैसे फिफ्थ फ्लोर पे तो डेफिनेटली आई हमारा फिफ्थ फ्लोर पे तो डेफिनेटली नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फिफ्थ फ्लोर पे मेरे को दो नाम रखने थे और दो नाम मेरे को ऑलरेडी पता है कि एएनसी आएंगे। ठीक, तो फिफ्थ पे नहीं हो सकता। क्या आई हमारा थर्ड फ्लोर पे हो सकता है? थर्ड फ्लोर पे डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज यहाँ वेकेंट है और इस जगह पे आई आ सकता है। दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर आई। क्या फर्स्ट फ्लोर पे हमारा आई हो सकता है? फर्स्ट फ्लोर पे हमारा आई होने के लिए आई को यहाँ पे आना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि एक नाम तो अभी भी हमारा क्या है, मिसिंग है। तो फिलहाल आई को हम यहाँ पे विजुअलाइज नहीं करते, बिकॉज आई के लिए फिलहाल मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है। फॉर द टाइम बिंग आई हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, आई हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और है, फर्स्ट वाले फ्लोर में अपने को एक चीज और ध्यान देनी है कि फर्स्ट वाले फ्लोर पे एक एम्प्टी फ्लैट होगा ना, ये तो डी से ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड है, तो ये वाला डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्रॉस होने वाला है, तो यहाँ पे क्रॉस भी डाल दो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया, क्रॉस आ गया। और आई के हमारे पास फिलहाल दो पॉसिबिलिटी है, अभी हम उसको अज्यूम नहीं कर रहे, थोड़ा आगे बढ़ते। 9th पॉइंट इज नाउ डन। 10th पॉइंट, सी लिव्स टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, अब ए एंड सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, सी लिव्स टू द राइट ऑफ ए। अब देखो चीजें कनेक्टेड है, सी लिव्स टू द राइट ऑफ ए है, मतलब ए के हमेशा राइट में सी आएगा, पहली चीज तो ये। दूसरा चीज अपने को ये भी पता है कि यार फिफ्थ फ्लोर पे एक क्रॉस तो डलेगा ना। अब वो क्रॉस कहां होगा, देखो अगर हम सोचना स्टार्ट करें, वो मेरा क्रॉस यहां हो सकता है, आई यूज अ डिफरेंट कलर, आई यूज अ वाइट कलर फॉर दिस। अगर हमारा वो क्रॉस लेट से यहां हुआ, तो यहां टिक और यहां टिक है। इन दैट केस इन दोनों में अगर टिक है और सी को ए के राइट में रहना है, तो इसका मतलब यहां ए आएगा और यहां पे सी आएगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझना, अगर यहाँ क्रॉस है तो ये दोनों टिक होगा और ए और सी ही रहते हैं, तो ए इधर आएगा और सी इधर आएगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अच्छा, कैन आई हैव अदर पॉसिबिलिटीज, वो जो मेरा क्रॉस है जरूरी नहीं है कि इसमें है, वो क्रॉस मेरा इसमें भी आ सकता है। अगर इसमें क्रॉस हुआ तो ये दोनों टिक होगा। इन दैट केस हमारा ए और सी ऐसे आएगा। इन दैट केस ए और सी ऐसे आएगा, बिकॉज सी हमेशा ए के राइट में होना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ए तुम यहाँ पे रख नहीं सकते, दिस कैन नॉट हैपन, बिकॉज ए अगर यहाँ रखोगे तो उसके जस्ट नीचे हमारा जी भी तो आना चाहिए, दैट कैन नॉट हैपन, बिकॉज यहाँ पे बी बैठा हुआ है। इसका मतलब हमारा वो पहला वाला पॉसिबिलिटी क्या है, सही है, बस। ठीक है, सो यहां पे हमारा
इसमें क्रॉस नहीं आ सकता सर, क्योंकि फिर इसमें नहीं ए आ सकता है, क्योंकि आना पड़ेगा फिर ए और सी आना पड़ेगा। दैट कैन नॉट हैपन। इसका मतलब फिर हमारा यहां पे डलेगा वो तीसरा एंड लास्ट क्रॉस। तीन ही क्रॉस आने थे, तीसरा क्रॉस, तीसरा हमारा वेकेंट फ्लैट यहाँ पे है। एंड बिकॉज ये दोनों फ्लैट अब हमारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और सी हमेशा ए के राइट में बैठेगा, दिस हैज टू बी ए, दिस हैज टू बी सी। ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, ए के जस्ट नीचे मेरे को पता है कि कौन बैठने वाला है, जी बैठने वाला है, तो जी हमारा यहाँ पे आ गया। दिस इज गुड। जी भी हमने क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 नेम्स आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। वी हैव 5 नेम्स लेफ्ट। ठीक है, 5 नाम देखते हैं कैसे फिट होगा। अच्छा, 10th पॉइंट अभी हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो 10th पॉइंट का एक पार्ट हमने करा, सी लिव्स टू द राइट अवे। ओके फाइन। नेक्स्ट पार्ट, ई डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर इन विच एल लिव्स। मतलब क्या हुआ, एल हमारा फ्लैट नंबर 3 में रहता है ना, सो ई डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर इन विच एल लिव्स। तो ई हमारा कहां पे आएगा, F3 में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं, ई हमारा F3 में नहीं हम प्लेस कर सकते। अब ई अगर हम F3 में प्लेस नहीं कर सकते, राइट, ई अगर हम F3 में प्लेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ई को कहां पे आना पड़ेगा, या तो इसमें आना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो इसमें आएगा या तो तुम्हारा इसमें आएगा। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर ई अगेन, राइट, देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर ई अगेन। तो अभी फिलहाल अगेन दो पॉसिबिलिटी है, इससे भी हम आगे पहले बढ़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ई वाला पार्ट अभी हमने डील नहीं करा है। अच्छा, नेक्स्ट, एल एंड आई लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। नाउ एल एंड आई लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, तो इसका मतलब थर्ड फ्लोर पे मेरा आई नहीं रहता। ठीक है, थर्ड फ्लोर पे आई नहीं रहता, बिकॉज एल एंड आई हैव टू लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर, तो यहां पे मेरा आई भी नहीं है। अच्छा, लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट कंडीशन, एफ लिव्स इन द फ्लोर, या ऑन द फ्लोर होगा बेसिकली, F lives on the floor which is between the floors of J and H. Now understand this. क्या कंडीशन है, F lives on the floor which is between the floors of J and H. तो F हमारा J और H के बीच में होना चाहिए। ठीक है, F हमारा J और H के बिटवीन होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। तो इट कुड बी दिस, मतलब ऊपर J हो सकता है नीचे H, या फिर ऊपर H हो सकता है नीचे हमारा J हो सकता है। क्लियर, राइट। अब देखो, इसको ना आप इसमें सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज एफ को जे और एच के बीच में रहना है, तो इसी लाइक ट्रिपलेट में आएगा ना, जे एफ एच आएगा। आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि एकदम कंटिन्यूअस आए, बट यस, एफ को इन दोनों के बीच में आना है। तो अब जैसे नोटिस करो, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसमें तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, बिकॉज एफ को इन दोनों के बीच में कहीं पे होना है, तो एफ लाइक एक्सट्रीम्स पे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एफ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले फ्लोर पे तो उसने मना कर रखा था कि एफ तो हम नहीं प्लेस करने देंगे। ठीक है, एफ यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे नहीं हो सकता। थर्ड फ्लोर पे हमारा एफ हो सकता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है। फोर्थ फ्लोर पे अगर एफ को आना है तो यहां आना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम फिर ये है कि अगर एफ यहां है तो नीचे और ऊपर हमारे जे और एच आने चाहिए इन सम पॉसिबल ऑर्डर, बट एफ के ऊपर फिर यहाँ पे ए एंड सी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, ब्लॉक कर चुके हैं, तो वहां पे ना एफ आ सकता है, ना तुम्हारा, सॉरी, ना वहां पे जे आ सकता है, ना तुम्हारा एच आ सकता है। इसका मतलब फोर्थ फ्लोर पे भी हमारा एफ नहीं आ सकता। तो इसका क्या मतलब निकल के आया तुम्हारे लिए कि एफ अगर रह सकता है, राइट, एंड एफ को हमारा जे और एच के बीच में कहीं पे रहना है, तो हमारी एक ही तो पॉसिबिलिटी बन के आएगी, दैट इज एफ हैज टू लिव ऑन दिस थर्ड फ्लोर। आई बात समझ में, एफ को हमारा यहीं पे रहना पड़ेगा। क्लियर, नाउ एफ को अब हमारा यहां पे रहना पड़ेगा, तो एफ के ऊपर और एफ के नीचे, एफ के ऊपर और एफ के नीचे किसको रखना है, हमें जे और एच को रखना है, राइट। तो अब हमें यहां पे पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी, एफ के एक ऊपर और एक नीचे, अब कौन कहां पे जाएगा। अब देखो, इसको सोचने से भी पहले मैं एक और नाम है उसको मैं क्लियरली डिसाइड कर सकता हूं। किसको डिसाइड कर सकता हूं, सबसे पहले मैं नोटिस कर रहा हूं यार, ये जो ई था ना, ये ई मेरा F3 वाले में नहीं आ सकता, मतलब एल के सेम फ्लैट नंबर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो हमारा ई है इसमें आ नहीं सकता, यहां स्पेस है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ई को कहां आना पड़ेगा, फर्स्ट वाले कॉलम में आना पड़ेगा। सो दिस हैज टू बी व्हाट, ई, राइट। यहां पे क्या चला जाएगा, हमारा ई चला जाएगा। अच्छा, अब यहां पे जब हमने ई रख दिया है,
तो अब एफ के ऊपर और एफ के नीचे, एफ के एक ऊपर स्पेस और एफ के एक नीचे स्पेस, तो यही दोनों स्पेस जो है दिस एंड दिस, ये कौन ऑक्यूपाई करेंगे? जे और एच कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने वाले, राइट? ये दोनों ऑक्यूपाई करने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो लाइक मिडिल या बिटवीन वाला पार्ट है ना, वो इसको हम एग्जैक्टली मिडिल लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट? उसको हम एग्जैक्टली मिडिल लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ के जस्ट ऊपर एंड जस्ट नीचे वाला सिनेरियो हो गया, ठीक है? सो ऊपर और नीचे हमारा किसको आना है? जे और एच को आना है। नाउ नोटिस करोगे, ये जो सेकंड फ्लोर है उस पे हमारा जे नहीं आ सकता, सेकंड फ्लोर पे हमारा जे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहां पे हमारा कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो जे अगर आ नहीं सकता तो यहाँ पे एच आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। एंड दैट फाइनली मीन्स कि हमारा जो लाइक रिमेनिंग पर्सन है, वो रिमेनिंग पर्सन हमारा कौन था? आई, राइट? आई। तो आई को फिर कहाँ पे आना पड़ेगा? इस फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा। सो दिस हैज टू बी व्हाट? आई, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो लाइक विच इज बिटवीन वाला पार्ट है ना, उसको हमने एग्जैक्टली बिटवीन लिया है, ठीक है? एफ इज बिटवीन जे एंड एच, तो एग्जैक्टली लाइक बिटवीन वाला हम मीनिंग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है? नाउ इफ दिस सेट इज एक्चुअली क्लियर टू एवरीवन, लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द प्रॉब्लम्स। सो क्या है? फर्स्ट, हु लिव्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वेकेंट फ्लोर ऑन फ्लोर 3? Floor 3, immediate right of the vacant floor. So that has to be what? F, option A. Second, who lives on the immediate right flat of G's flat? तो immediate right flat of G's flat, तो G का immediate right कौन हो गया हमारा? J हो गया, ऑप्शन डी। थर्ड, who among the following doesn't live on floor 2? तो E, K और H रहते हैं, E, K और H के अलावा who among the following doesn't live दिया हुआ है, so it has to be N. And fourth, how many of the 12 people can, for how many of the 12 people can the exact floor and flat number be uniquely determined, right? For how many of the 12 people can the exact floor and flat number be uniquely determined? तो हम सबके लिए यूनिकली फिगर आउट कर सकते हैं, राइट? सबके लिए हम यूनिकली क्या कर सकते हैं? फिगर आउट कर सकते हैं, एंड हेंस द आंसर वुड बी 12, राइट? अब लाइक टू ऐड टू दिस, एक और मैं लाइक खुद ही कैच इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, कैच नहीं है, बेसिकली लैंग्वेज का पार्ट है। नाउ टू सॉल्व दिस, मैंने वापस से आपको फिर से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो हमने अज्यूम किया था ना कि एफ लिव्स बिटवीन जे एंड एच वाला जो स्टेटमेंट है, इट एक्चुअली मीन्स एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है? तो वो सिमेट्री मेंटेन्ड है। अगर वो चीज लेट से वो सिमेट्री मेंटेन नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एफ जे और एच के बीच में बैठता है, तो अब हो सकता है जे जस्ट ऊपर बैठे और एच इससे 2 प्लेस के बाद बैठे। अगर हम वो मीनिंग लेके चलेंगे तो फिर हमारा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा, ज्यादा भी डिफरेंट नहीं होगा, बिकॉज देखो जे बचा था, एच बचा था और आई बचा था। इन दैट केस आपको फिर ना काफी सारी पॉसिबिलिटीज मिलती, बट इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको वही मीनिंग लेके चल रहा है। बिकॉज फिर अगर एक ऊपर रखना था और एक नीचे रखना था, तो फिर हम जस्ट नीचे जरूरी नहीं है ना, फिर हम जस्ट नीचे रखते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मान लो हमने ऊपर जे रखा, मान लो हमने फोर्थ पे जे रखा, तो एच को फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड पे रख के आई को 1 पे रख सकते थे, या फिर जे को फोर्थ पे रख के एच को 1 पे रख के आई को सेकंड पे रख सकते थे, या फिर इन दैट केस ऑल्सो जे हमारा फिर लेट से सेकंड पे नहीं आ रहा ना, बट जे हम फर्स्ट पे रख के, जे को हम फर्स्ट पे रख सकते थे, और एच को फिर हम फोर्थ पे रख सकते थे, और आई को फिर हम सेकंड पे रख सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर नोटिस करोगे तो आपके पास 3 और पॉसिबिलिटी आएंगी, राइट? अगर हम वो वाला मीनिंग लेके चलते। तो मैं आपको पहले ही दोनों मीनिंग समझा दे रहा हूं, और मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे जो हमने सॉल्व करा हुआ है, उसको हमने क्या मीनिंग लेके चला हुआ है? लाइक विच इज बिटवीन द फ्लोर्स, मिडिल में होना चाहिए उन दोनों के, ठीक है? ओके, सो आई होप दिस सेट इज एक्चुअली क्लियर टू एवरीवन, राइट? लास्ट वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एंड बिफोर वी एंड, अगर आप स्पेसिफिकली एक एलआरडी का बैच देख रहे हो, इफ यू वांट टू स्टडी एलआरडी फ्रॉम मी, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच, राइट? एंड ये बैच हमारा 7 जनवरी से एक्चुअली में स्टार्ट हो गया था। सो वी आर करेंटली ऑन टू लाइक से इसमें लीनियर अरेंजमेंट्स में ही है अभी हम, राइट? इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह है, ठीक है? एंड फिनिक्स बैच हमारा जनवरी 6 को स्टार्ट हुआ था, इसका एडमिशन क्लोज होने वाला है, राइट? वेरी सून। सो
यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच एज वेल, अगर तुम पीछे का कवर अप करना चाहते हो, राइट। एंड फाइनली महाराष्ट्र सीईटी का करेंटली कोर्स चल रहा है, सो इसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन, and if you have any doubts, you can definitely put that in the comments. See you in the next video. Thank you guys. Bye.